Hey friends, in this video we are going to study about Wnt pathway or beta-catenin pathway. So Wnt pathway, Wnt pathway or beta-catenin pathway is actually a pathway which shows cell growth and developmental pathways. So cell growth and developmental pathways takes place from this signaling, which is Wnt signaling or beta-catenin pathway. Over here, the ligand which is used in this pathway is the Wnt protein, which is found in Drosophila, made by Wnt genes and is responsible for the formation of wings. सो ड्रोसोफिला के अंदर जो विंग्स बनती हैं वो WNT जीन्स के कारण बनती हैं और WNT जो है एक प्रोटीन है जो कि लाइगेंड या सिग्नलिंग मॉलिक्यूल की तरह एक्ट करता है. यही जो WNT प्रोटीन है इट्स ऑल्सो फाउंड इन माइस और इसको उस जगह पे INT1 जीन्स बोलते हैं. सो WNT प्रोटीन इन माइस इज कॉल्ड INT जीन्स. और अगर INT जीन्स के अंदर कहीं भी म्यूटेशन आ जाते हैं सो म्यूटेशन से क्या होता है, इट लीड्स टू द इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ दिस प्रोटीन. WNT प्रोटीन की जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है और हद से ज़्यादा इंक्रीज प्रोडक्शन के चक्कर में बहुत ज़्यादा सेल डिवीजन हो जाती है विच में लीड्स टू ब्रेस्ट कैंसर. सो ब्रेस्ट कैंसर इन द माइस is due to the mutation in INT1 gene which is a kind of WNT जीन. तो WNT जीन को INT1 जीन बोला जाता है माइस के अंदर एंड इट लीड्स टू ब्रेस्ट कैंसर इन केस ऑफ म्यूटेशन इन दिस जीन. सो द ligand that we are studying in this pathway is the WNT protein and this pathway is also called as beta catenin signaling. नाउ लेट्स सी कि ये जो मैमल्स के अंदर कितने तरह के WNTs होते हैं. सो मैमल्स या ह्यूमंस के अंदर 19 टाइप्स ऑफ WNT प्रोटीन्स आर प्रेजेंट इन मैमल्स. और ये प्रोटीन में जो है जिस तरह हमने हेजहॉग सिग्नलिंग में देखा था वैसे ही इस प्रोटीन के अंदर भी जो है फैटी एसिड्स जो है वो प्रोटीन की चेन के साथ अटैच होते हैं कोवेलेंटली. सो अगर WNT प्रोटीन का स्ट्रक्चर देखेंगे N और C टर्मिनल होता है और C टर्मिनल के पास ही जो है फैटी एसिड्स जो है वो अटैच होते हैं कोवेलेंटली. तो fatty acids are attached covalently at the C terminal of WNT protein and this represents a kind of structure of WNT protein. Now we have two cases to study. First of all, the signaling where no ligand is present and the second case where the ligand is present. There are total two receptors which is present in the on the plasma membrane. So this diagram represents the plasma membrane. This is the extracellular region. This is the cytoplasmic region. On the plasma membrane, we can see there are two receptors. First of all, we have the frizzled receptor. Frizzled receptor resembles the GPCR, which is G protein coupled receptor, because it is a 7 transmembrane alpha helices. ये जो रिसेप्टर है 7 बार प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करता है. वी कैन सी सो दिस इज अ फ्रिजल रिसेप्टर एंड दैट्स व्हाई इट रिजेंबल्स द GPCR because GPCR also crosses the plasma membrane 7 times. So that's why this is a 7 transmembrane alpha helix. So this frizzled receptor is present on the plasma membrane. The other receptor or co-receptor, the co-receptor which is present on the plasma membrane is called the LRP receptor. This LRP receptor is actually the LDL related receptor related protein. LDL receptor related protein. It's a co-receptor which is present on the plasma membrane. So the first case that we are studying is the absence of ligand. जब कोई भी सिग्नलिंग मॉलिक्यूल या WNT प्रोटीन अगर एब्सेंट है तो WNT प्रोटीन की एब्सेंस में ये जो फ्रिजल्ड रिसेप्टर है या LRP को रिसेप्टर है इनके साथ जो है बाइंडिंग किसी भी लाइगेंड की नहीं होगी. और अगर यहाँ पे किसी भी लाइगेंड की बाइंड नहीं होगी तो क्या होगा कि जो साइटोप्लाज्म के अंदर वी हैव अ प्रोटीन विच इज़ कॉल्ड एज द डीशिवल्ड प्रोटीन. तो द थर्ड पॉइंट इज कि जो प्रोटीन है हमारे पास साइटोप्लाज्म के अंदर डीशिवल्ड प्रोटीन इट विल रिमेन इनएक्टिव इन द एब्सेंस ऑफ लाइगेंड. ऑल्सो we can see there is another protein which is present in the cytoplasm. It's called the beta catenin protein. So we know this pathway is also called as beta catenin signaling pathway क्योंकि यहाँ पे जो बीटा कैटेनिन है वो एक ट्रांसक्रिप्शन को एक्टिवेटर की तरह एक्ट करता है. सो बीटा कैटेनिन प्रोटीन प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म इज इनएक्टिव
इन द एब्सेंस ऑफ लाइगेंड। जब WNT प्रोटीन एब्सेंट है, वो लाइगेंड के साथ अटैच नहीं होता या बाइंड नहीं होता, उस टाइम पे बीटा कैटेनिन भी क्या हो जाता है, इनएक्टिव हो जाता है। इसकी इनएक्टिवेशन जो है बीटा कैटेनिन की, वो कुछ हमारे पास एंजाइम्स होते हैं जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं, वो करवाते हैं। और ये इनएक्टिवेशन होती है बाय फॉस्फोराइलेशन ऑन द सिराइन रेजिड्यू। सिराइन रेजिड्यू पे फॉस्फोराइलेशन हो जाती है बीटा कैटेनिन प्रोटीन की, विच इज़ डन बाय केजिन काइनेज 1 एंड ग्लाइकोजन सिंथेज काइनेज 3। वी हैव ऑल्सो स्टडीड दीज एंजाइम इन केस ऑफ हेजहॉग सिग्नलिंग। उसमें भी हमने देखा था कि केजिन काइनेज और ग्लाइकोजन सिंथेज काइनेज एंजाइम्स भी प्रेजेंट होते हैं जो कि फॉस्फोराइलेट कर देते हैं किसी भी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को। तो यहाँ पे जो बीटा कैटेनिन प्रोटीन है, इट्स अ ट्रांसक्रिप्शन कोएक्टिवेटर विच गेट्स phosphorylated by these enzymes on their serine residue. Also, along with the phosphorylation, there is another प्रोटीन कॉल्ड एज एक्सिन प्रोटीन। एक्सिन प्रोटीन भी जो है वो बीटा कैटेनिन के साथ अटैच हो जाता है, और एक और प्रोटीन जो है वो अटैच होता है विच इज़ कॉल्ड एज द APC। दिस APC प्रोटीन ऑल्सो गेट्स अटैच विद द बीटा कैटेनिन प्रोटीन, एंड APC रिप्रेजेंट्स द एडिनोमेटस पॉलीपोसिस कोलाई। APC यहाँ पे एडिनोमेटस पॉलीपोसिस कोलाई है, ये भी अटैच कर जाता है, और ये सारा का सारा जो है कॉम्प्लेक्स क्या कर जाता है, एक सारा का सारा एक कॉम्प्लेक्स है जो बीटा कैटेनिन को इनएक्टिव बना देता है। अब ये जो बीटा कैटेनिन है, इस इनएक्टिव स्टेट में, इस कॉम्प्लेक्स फॉर्म में चला जाता है यूबिक्यूटिनेशन के अंदर। यूबिक्यूटिनेशन मतलब डिस्ट्रॉइंग द बीटा कैटेनिन प्रोटीन। अब बीटा कैटेनिन प्रोटीन जो है प्रोटियोजोम के मदद से जो है डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब ये जो बीटा कैटेनिन प्रोटीन जो कि डिस्ट्रॉयड है, यानी कि ये जो फॉस्फोराइलेटेड इनएक्टिव बीटा कैटेनिन प्रोटीन है, ये न्यूक्लियस के अंदर एंटर ही नहीं कर सकता। जब बीटा कैटेनिन जो कि एक कोएक्टिवेटर है, ट्रांसक्रिप्शन कोएक्टिवेटर है, वो ही न्यूक्लियस के अंदर जाके ट्रांसक्रिप्शन को एक्टिवेट नहीं करा सकता, तो इस केस में ट्रांसक्रिप्शन क्या हो जाएगी, रिप्रेस्ड हो जाएगी। तो ये जो हमारे पास सेल ग्रोथ या सेल डेवलपमेंटल पाथवेज हैं, वो नहीं हो पाएंगे इन द एब्सेंस ऑफ लाइगेंड। अगर WNT प्रोटीन एब्सेंट है तो ये जो LRP को रिसेप्टर है और फ्रिजल रिसेप्टर है, ये भी इनएक्टिव रहेंगे। यहाँ पे डिशिवल्ड प्रोटीन इनएक्टिव रहेगी, बीटा कैटेनिन इस पूरे कॉम्प्लेक्स की मदद से इनएक्टिव रहेगा, यूबिक्यूटिनेशन से डिस्ट्रॉय हो जाएगा, और बीटा कैटेनिन जो है न्यूक्लियस के अंदर एंटर नहीं कर पाएगी। तो ये हमारे पास है पहला केस। नाउ द नेक्स्ट केस वी स्टडी इन विच द लाइगेंड इज प्रेजेंट एंड बाइंड्स टू द रिसेप्टर एंड द को रिसेप्टर। Now the second case is where the ligand is present, WNT is present. So this WNT protein will get attached to their ligands, to their receptors. The WNT protein in this case will bind to their receptors, and we know the receptors are frizzle receptors and LRP co-receptor. तो ये LRP co-receptor और frizzle receptor के साथ WNT प्रोटीन अटैच हो गया, लाइगेंड बाइंड हो गया। लाइगेंड बाइंड होने के कारण क्या है, जो ये डिशिवल्ड प्रोटीन है जो कि इनएक्टिव था, अब वो क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा बाय बाइंडिंग टू देयर C टर्मिनल। फ्रिजल रिसेप्टर के C टर्मिनल पे बाइंड हो जाएगा डिशिवल्ड प्रोटीन, ये हो जाएगा एक्टिव। जैसे ही डिशिवल्ड प्रोटीन एक्टिव होगा, ये हेल्प किस में करेगा, फॉस्फोराइलेशन में। दिस डिशिवल्ड प्रोटीन विच हैज़ बिकम एक्टिव बाय बाइंडिंग टू द C टर्मिनल ऑफ द फ्रिजल रिसेप्टर आफ्टर बाइंडिंग टू दिस ligand, this disheveled protein helps in the phosphorylation of दिस LRP रिसेप्टर। अब जो LRP को रिसेप्टर है, ये जो को रिसेप्टर है, अब ये फॉस्फोराइलेट हो जाएगा बाय केजिन काइनेज 1 एंड ग्लाइकोजन सिंथेज काइनेज 3 एंजाइम। सो नाउ दीज एंजाइम विल फॉस्फोराइलेट LRP को रिसेप्टर, एंड due to their phosphorylation the exin protein will also get attached to the LRP। तो एक्सिन प्रोटीन भी LRP के साथ अटैच हो गई, और जो APC था विच इज़ एडिनोमेटस पॉलीपोसिस कोलाई, ये भी क्या हो जाएगा, फ्रीली साइटोप्लाज्म के अंदर डिसोसिएट करके रहना शुरू कर देगा। तो APC भी फ्रीली डिसोसिएट हो जाएगा, एक्सिन जो है वो इस फॉस्फोराइलेटेड LRP के साथ जाके, को रिसेप्टर के साथ जाके अटैच हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, अब हम देख सकते हैं कि बीटा कैटेनिन हो गया फ्री एंड एक्टिव। नाउ बीटा कैटेनिन जो है फ्री और एक्टिव हो गया क्योंकि डिसेबल्ड प्रोटीन एक्टिव हो गया, जिसके कारण जो है फॉस्फोराइलेशन हो गई LRP की, और सारी चीज़ें जो है LRP के पास चली गई। अब इस को रिसेप्टर के पास जो है सब कुछ चला गया, और बीटा कैटेनिन जो कि को एक्टिवेटर है वो बन गया एक्टिव।
Now this beta catenin will enter in the nucleus. We can see this beta catenin which has become active will enter in the nucleus. अब न्यूक्लियस के अंदर जैसे ही बीटा कैटेनिन एंटर होगा तो वो दो चीज़ें देखेगा. वो देखेगा कि जो उसकी ट्रांसक्रिप्शन है वो रिप्रेस्ड हो रखी है. बीटा कैटेनिन जैसे न्यूक्लियस के अंदर आएगा तो इस केस को देखेगा जिसमें ट्रांसक्रिप्शन रिप्रेस हो रखी है बिकॉज ऑफ ग्रूचो. ग्रूचो जो है एक को रिप्रेसर है. ग्रूचो क्या है? एक को रिप्रेसर है जो कि ट्रांसक्रिप्शन को रिप्रेस्ड रखे रखता है. TCF and LEF1 is a transcription activator. TCF and LEF1 is a transcription activator. But Grucho is a co-repressor which makes the transcription repressed. And as the beta catenin enters inside the nucleus, it will remove the Grucho and attaches itself to the कॉम्प्लेक्स. ये ग्रूचो को रिमूव करेगा, खुद को अटैच कराएगा, एक को एक्टिवेटर की तरह काम करेगा. तो TCF और LEF1 भी जो है बीटा कैटनिन प्रोटीन की मदद से एक्टिवेट हो जाएंगे. एंड दिस ट्रांसक्रिप्शन, इट्स अ ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेटर. ये सारा का सारा एक कॉम्प्लेक्स हो जाएगा जो कि ट्रांसक्रिप्शन को एक्टिव कर देगा. अब ट्रांसक्रिप्शन एक्टिव हो जाएगी तो एक पर्टिकुलर जीन्स को एक्टिवेट करेगी जिसका नाम है c-MYC जीन्स. सो c-MYC जीन्स actually gets activated in case of WNT signaling pathway और beta catenin signaling. So beta catenin या WNT signaling में क्या होता है? c-MYC genes activate हो जाते हैं by beta catenin which is a co-activator which leads to the production of c-MYC proteins which further helps in cell division and cell growth. So जो beta catenin pathway या WNT सिग्नलिंग है ये मदद करती है सेल डिवीजन या सेल ग्रोथ के अंदर. और ये तभी मदद करती है अगर हमारे पास लाइगेंड जो है WNT प्रोटीन प्रेजेंट हो. अगर WNT प्रोटीन प्रेजेंट है तभी फ्रिजल रिसेप्टर और LRP को रिसेप्टर जो है खुद को एक्टिव करेंगे और डिशिवल्ड प्रोटीन अपने आप को एक्टिव कर पाएगा जिसके कारण जो है बीटा कैटेनिन खुद को फ्री कर लेगा विद दीज एंजाइम्स एंड दीज प्रोटीन्स. एंजाइम्स और प्रोटीन से खुद को फ्री करने का तरीका यही है कि लाइगेंड जो है वो आके अटैच हो जाए. और लाइगेंड हमारे पास क्या है? WNT प्रोटीन, जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया, विच वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन ड्रोसोफिला एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ विंग्स. ह्यूमंस के अंदर 19 तरह के WNT प्रोटीन्स पाए जाते हैं. तो इस तरह से ये जो सिग्नलिंग है वो कंप्लीट होती है. उसके बाद अगर हम देखते हैं कि अगर बीटा कैटेनिन की अमाउंट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाए, सिग्नलिंग पाथवे में अगर कभी भी म्यूटेशन आ जाती है तो बीटा कैटेनिन की अमाउंट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है. और अगर आप सोचो कि बीटा कैटेनिन हमेशा ही एक्टिवेट रहेगा तो c-MYC जीन्स की प्रोडक्शन भी इंक्रीज़ होगी. अगर c-MYC जीन्स की प्रोडक्शन इंक्रीज़ होगी तो सेल ग्रोथ और सेल डिवीजन बहुत ज़्यादा होगी. और अगर सेल ग्रोथ और सेल डिवीजन बहुत ज़्यादा होगी तो इट विल लीड्स टू कैंसर. तो यहाँ पे भी जो है कैंसर हो सकता है. दूसरी चीज़ है APC. हमें पता है एडिनोमेटस पॉलीपोसिस को लाई जो है बीटा कैटेनिन को ब्लॉक करने का काम करती है या इनएक्टिवेट करने का काम करती है. लेकिन अगर APC जीन्स भी म्यूटेटेड हो जाए तो वो कभी भी बीटा कैटेनिन को इनएक्टिव नहीं कर पाएगी. यानी कि देयर डिग्रेडेशन कॉम्प्लेक्स विल नॉट वर्क, सो बीटा कैटेनिन विल रिमेन फ्री विच विल लीड्स टू कैंसर. एंड द एग्जाम्पल इज कोलोन कैंसर. हमने हेजहॉग पाथवे में जो है स्किन कैंसर के बारे में देखा था कि हेजहॉग सिग्नलिंग में अगर प्रॉब्लम हो जाए तो स्किन कैंसर होने के चांसेस होते हैं. लेकिन अगर WNT या बीटा कैटेनिन सिग्नलिंग में म्यूटेशंस हो जाएं तो यहाँ पे कोलोन कैंसर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं. सो दीज आर द रीजंस फॉर कैंसर. तो आई विल सजेस्ट यू टू फॉलो ऑल द सिग्नलिंग पाथवेज दैट आई हैव मेड वीडियोज़ ऑन. मैंने जो है 11 टोटल सिग्नलिंग पाथवेज पे वीडियोज़ जो है बनानी है. तो आई होप यू विल complete each and every signaling, and in case you need note you can simply comment me and I will provide you the link of the notes. I hope that you like this video, and if you did then please don't forget to like, subscribe, share, comment. Thank you.